Assalamu alaikum class 7. I'm your teacher Imrana Tahir. Today we will start chapter number 9, and this chapter is about the energy resources. In this chapter we will read about the different resource of energy. We will read about the fuel. We will read about the energy that we get from the fuel. In the start of the chapter you can see the different type of the fuel, and these fuels are the substances that we burn and we get energy. So the things that we burn are called the fuel, and the energy that they release, we use that energy in our daily life. Here you can see the picture of the Bunsen burner. Bunsen burner बेटा वो apparatus है जो हम अपनी साइंस लैब में यूज़ करते हैं for heating purpose. Bunsen burner actually a burner that run with the help of the natural gas. ये हम natural gas से इसको चलाते हैं. It gives the two type of the flame. Oh, you can see in the picture one flame is non-luminous and other is luminous flame. What is the difference between non-luminous and luminous flame? Bunsen burner के ऊपर एक hole होता है. You can see the hole, air hole. When we open the air hole, then it gives the non-luminous flame and its color is blue. When the air hole is closed, its color is red and it gives the luminous flame. We have done very important question comparison between the non-luminous and luminous flame. अगर हम दोनों का comparison करें तो कौन सा flame ज़्यादा better है? So a non-luminous flame is hotter and give the higher energy output. That's why we use the non-luminous flame in our lab, because it give the more energy and does not produce the soot. Soot कहते हैं हम black colored smoke. ऐसा ये धुआं नहीं निकलता black color का इसमें से. That's why we use the non-luminous flame in the lab. The next topic is fossil fuel. Fossil fuels क्या होते हैं? Fossil fuels are those fuel which are rich in carbon and hydrogen, जिनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. When these burn in the presence of the air, जब ये हवा की मौजूदगी में जलते हैं, they give the lot of energy in the form of heat and light. इसकी एग्जाम्पल है coal, crude oil and natural gas are the examples of the fossil fuel. The next topic is about the use of the fossil fuel. आप सबको पता है we use fossil fuel in our transport, home and industry. हमारी इंडस्ट्री है, हमारे घर के काम है, all run with the help of the fossil fuel. Okay, here a very important description of the energy production, generation of the electricity by using the coal. यहाँ पर डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन देनी है आपको कि कैसे हम कोल का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू कैन सी द कोल इज़ यूज्ड when these coal burn and give the energy heat, and this heat is used to boil the water. वाटर को बॉयल किया जाता है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. देन वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम. आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा है. एंड स्टीम ट्रेवल एंड मूव टूवर्ड्स द टरबाइन. स्टीम रन द टरबाइन. टरबाइन को रोटेट करती है. टरबाइन वर्क एंड ऑन जनरेटर. टरबाइन अपनी एनर्जी जनरेटर को देता है. जनरेटर वर्कआउट करता है एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो हम तक पहुंचती है और हम उसको यूज़ करते हैं. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कोल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Next very important topic about the formation of fossil fuels, we have to read about the coal formation. कैसे कोयला बनता है? बेटा जब बहुत ज़्यादा हैवी डेंस फॉरेस्ट किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से
ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ऐसी ज़मीन के अंदर दैट इज़ मॉइस्ट एंड कंटेन मड, जिसके अंदर नमी हो, मड हो, और वो बहुत सालों तक ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं। आफ्टर अ मिलियन ईयर, जब वो वहाँ पर उनकी माइनिंग की जाती है, उनको खोदा जाए, तो नीचे से जो जो डेड प्लांट होते हैं, बरीड प्लांट होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो टर्न इनटू कोल, वो कोयले में चेंज हो जाती है। बट ऑल दिस प्रोसेस अकर with the help of the heat and pressure over the long period of time. The next we have to read about the crude oil formation, कैसे हम ऑयल को obtain करते हैं। प्लैंकटन के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये टर्म पता चलेगी। टाइनी ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो सी एंड ओशियन में रहते हैं, वह जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है डीप इन इन सी एंड ओशियन, जब ये ज़मीन के अंदर सी एंड ओशियन के अंदर जब ये दब जाते हैं अंडर द मड एंड सैंड ओवर द मिलियन ऑफ ईयर, बहुत सालों तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता दबे हुए ये ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द हीट एंड हाई प्रेशर स्लोली देयर बॉडी चेंज इनटू द ब्लैक लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड द क्रूड ऑयल। अब वही क्रूड ऑयल है दैट वी यूज़, देन वी यूज़ क्रूड ऑयल इन आर डेली लाइफ। फिर हम इनको क्रूड ऑयल को अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस पे रन करती हैं। द नेक्स्ट इज़ द नेचुरल गैस फॉर्मेशन। नेचुरल गैस कैसे बनती है? यही ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होते हैं, अ गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर बॉडी, दैट गैस इज कॉल्ड द मीथेन गैस। And methane gas is also found, we get it with the coal and crude oil। ये भी crude oil और coal के साथ ही पाई जाती है। और जो है आपने सुना होगा, माइनिंग करते हैं बहुत सारे, कोल माइनर्स होते हैं और गैस माइनिंग भी होती है। कोल माइनिंग एक्चुअली इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि कोल और ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस भी होती है। सम टाइम कोल माइनर्स जब माइनिंग कर रहे होते हैं तो नेचुरल गैस, बिकॉज नेचुरल गैस इज़ पॉइजनस, तो वहाँ पर नेचुरल गैस के इकट्ठा हो जाने की वजह से सम टाइम धमाका हो जाता है, या वो लीकेज की वजह से कुछ माइनर जो होते हैं कोल माइनर, उनकी डेथ भी हो जाती है।